Clear? Advancing and retarding clocks. Please respond someone. Can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Is this point clear to all of you, or does it require explanation? Ship crossing eastbound. Even though you are advancing clocks every day, when you cross the international date line, you will retard one day. And if you are westbound, even though you will be retarding clocks every day, when you are crossing the international date line, you will advance the date by one day. उसका रिवर्स करना है. So a ship going from Japan to US West Coast, when you're crossing 180 degrees, you will retard one day. And the ship going from West Coast of USA to Japan, till she reaches 180, she will keep retarding her clocks, but the moment she crosses 180, she will advance one day. Any questions on this one, gentlemen? You see the next slide. You can see 180 degrees in the center. The dotted red line down below is written 180 degree. If you see from the top, it is coming down as a straight line, but somewhere in between it is getting twisted and turning to include those islands, Kiribati, Sarora. You see there is American Samoa, because Tahiti and all this is American, so it remains on this side. And the other may be belonging to Fiji Islands. Small, so many islands belonging to one country, so they want to maintain a particular date. So the international date line is slightly adjusted accordingly. Even in the north, I don't know whether I have a slide that one over here or not. I can show you on the globe. I will show you. Can you see this? Is the screen bright enough? Can you see the 180 degree longitude? Yes, sir. Yes, sir. On the north, which country or how is it cutting over there? It is cutting that Russian country. Yes or no? It is passing through that land on top where it's written Arctic Circle. Yes, this part I'm referring to. Yes, sir. It is cutting across this land, no? Yes, sir. Now Yes, this is sir. Russia. This is Russia, one country, and this is America, Alaska. Alaska. So the international date line is passing through the Bering Strait over here, like this. International date line is passing through the Bering Strait, so that the date on Russia remains one and the date on America remains the other side. Actually, the other video on international date line is not a good video, so
I could not show that one to you. Maybe let me see if there's another picture. The net, then we will see. Yeah, this one is better. So if you see this, the way international date line, the slide which I showed you was of this area, Kiribati or whatever. And here if you see, it's going like this. Because these islands belong to America, Alaska. And this is Russian continent, this is America. So the international date line crisscrosses like this. And it comes down. Is the picture clear to everyone now? What is international date line? Yes, gentlemen? Yes, sir. Okay. So if you want to study more about it, you can. There you have enough of information on the net nowadays for you to understand. It's going to maintain community so that Midway Island is 11 hours, Hawaii is 10 hours. So depending upon part of the. सर आपकी आवाज कट रही है बहुत. सर आपकी आवाज कट रही है. सर डिस्टॉर्टेड आ रही, कट कट आ रही. आवाज क्यों होती है? How's it? Better now? अभी ठीक है? Yes, sir. Yeah, so you can, there's a lot of information on the net where you can study whatever, if you want more details about it. Now, is this part understood how this calculation works, retarding one day? And let's do a small calculation. Let us say one ship starts from 180-degree longitude and is going east, 090. What will it do with its clock every day? Take out your pen and paper. A ship starts from 180-degree longitude and is going east, 090. What will it do with its clocks every day? Advance or retard? Retard. Retard. Are you sure? Yes, sir. Eastbound vessel हो गया ना? The ship is starting from 180-degree longitude, going east, steering 090. What will it do with its clocks? Advance or retard? Sir, advance. कंफ्यूज क्यों हो गए? पहले तो ठीक जवाब दे रहे थे तुम तो. सर रिटार्ड. सर रिटार्ड होगा. रिटार्ड क्यों होगा? करेंगे सर. एडवांस होगा सर. जब मैंने यहाँ पूछा था, यहाँ से 090 स्टीयर कर रहे थे तुम, सिंगापुर इंडिया से आ रहे थे और ईस्ट जा रहे थे, तुमने क्या बोला था? So we were advancing when we were going east to west. Now if we will go west to east, then we will. नहीं, अभी दोबारा क्वेश्चन सुनो मेरा. इंडिया से मैं जापान जा रहा हूँ. इंडिया से मैं जापान जा रहा हूँ.
ये इंडिया है ना, इंडिया से मैं इधर सिंगापुर, जापान या इधर सब गया, तो मैं क्लॉक को क्या कर रहा हूँ? एडवांस एडवांस कर रहा हूँ। एडवांस कर रहा हूँ सर। एडवांस कर रहा हूँ ना। तो ऐसे में आगे अगर कंटिन्यू करूँ मेरी जर्नी और ईस्ट जा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? एडवांस कर रहा हूँ ना। तो एडवांस करते करते मैं जब 179 ईस्ट पहुंच के 180 क्रॉस करके 179 वेस्ट पहुंच गया, एंड आई कंटिन्यू स्टीयरिंग दैट सेम कोर्स 090, तो घड़ी को क्या करोगे? एडवांस सर एक दिन रिटार्ड करके फिर एडवांस करते रहेंगे। एक दिन रिटार्ड करके एडवांस करते रहोगे, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन ये था कि अगर मैं 180 डिग्री से स्टार्ट करूं और ईस्ट जाना शुरू करूं तो मैं घड़ी को क्या करूंगा एवरीडे? सर वन डे रिटार्ड करके एडवांस वन डे को फिर छोड़ दो advance ना, मैंने तो सर एडवांस मैंने अपना वॉइस स्टार्ट 180 डिग्री से किया ना, करेंगे। मैंने तो अपना वॉइस ही 180 एडवांस करेंगे सर। एडवांस करेंगे, ठीक है। सो आई कंटिन्यू एडवांसिंग एवरी डे. Let us say I cover 12 degree of longitude every day. I cover 12 degree of longitude every day. तो कितने दिन में मैं वापस आ जाऊंगा? पूरा गोल घूम के पीछे से वापस इधर आके मैं वापस सेम पॉइंट पे कितने दिन में पहुंचूंगा? सर 30 days 30 days. Sir, 30. Every day if I traverse 12 degree of longitude, I have to cover the entire globe 360 degrees. तो 30 days में मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं 1 तारीख को स्टार्ट किया तो कितनी तारीख होनी चाहिए यहाँ पर? 31st. 30 दिन में पहुंचा, तो अगर 1 तारीख को मैंने स्टार्ट किया 000 आवर्स, तो 30th तारीख होगी जब मैं पहुंचूंगा वापस, 30 तारीख होगी ना। 30 डेज में 30 तारीख है कि नहीं? करेक्ट। हाँ, वहां पहुंच गया मैं। लेकिन एवरी डे और रैदर फॉर एवरी 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड मैंने घड़ी को एडवांस कितना किया? सर 24 बार, 24 बार। एवरी 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड मैंने घड़ी को कितना एडवांस किया? 1 घंटा। 1 आवर। वेरी गुड। 360 डिग्री में मैंने कितना एडवांस किया? 24 आवर कर दिया। तो जब मैंने 24 आवर एडवांस कर दिया तो मेरा कैलेंडर कौन सी तारीख दिखाएगा जब मैं यहाँ पहुंचूंगा? 31st दिखाएगा। 31st. तो इसीलिए अगर मैंने दोबारा इस लाइन को क्रॉस किया तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 1 दिन Retard. 1 दिन मेरे को रिटार्ड करना पड़ेगा, ताकि मैं 30 तारीख, क्योंकि यहाँ 30 तारीख है, यहाँ 30 तारीख चल रही है, क्योंकि मैंने घड़ियाँ एडवांस की हैं। सिमिलरली अगर मैं रिवर्स डायरेक्शन में जाऊँ यहाँ से, एवरी डे आई विल बी रिटार्डिंग क्लॉक्स। अगर उसी कैलकुलेशन से हम देखें, हम पहुंचेंगे यहाँ 30 दिन में, लेकिन डेट क्या होगी? 31st. Remember, now I am going west. For every 12 degree of longitude, I am retarding clock by 1 hour. सर 29। 29 होगी सर। पहुंचूंगा तो 30 दिन में, क्योंकि 12 डिग्री लॉन्गिट्यूड रोज क्रॉस कर रहा हूँ। 30 डेज में पहुंचूंगा, लेकिन डेट मेरी होगी 29, क्योंकि मैंने डेली तो घड़ी रिटार्ड की है ना। So if I am crossing from this side to this side, western hemisphere to eastern hemisphere, I will advance the date by 1 day. सिर्फ डेट एडवांस और रिटार्ड हो रही है, घड़ी वैसी चलती जाएगी। एडवांस करने के बाद अगेन घड़ी रिटार्ड चलती जाएगी। तो सब लोग समझ गए कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल डेट लाइन का? एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? जेंटलमैन, यस।
Anyone, any questions? Yes. इसको टॉपिक को दोबारा पढ़ो, कैलकुलेट करना और फिर इसको अच्छे से समझ लेना। तो हमें पूरा ग्लोब क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकली हम शिप में क्या करते हैं, मान लो ऑस्ट्रेलिया के इधर से हम सिडनी वगैरह से कहीं निकले, साउथ अमेरिका ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट गए, या पनामा का कैनाल पहुंचे, अमेरिका वेस्ट कोस्ट, जहां भी पहुंचे, द मोमेंट यू आर क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम द ईस्टर्न हेमिस्फेयर टू द वेस्टर्न हेमिस्फेयर, you will retard by 1 day, and when you are going from eastern hemisphere, from the western hemisphere to the eastern hemisphere, you will advance by 1 day. ये याद रखना जरूरी इसलिए क्योंकि प्रैक्टिकल नेविगेशन के प्रॉब्लम्स में कभी कभी तुम्हारे मर्केटर सेलिंग में भी हो सकता है, अदरवाइज यू मे हैव टू क्रॉस फ्रॉम ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू वेस्ट लॉन्गिट्यूड एंड वेस्ट लॉन्गिट्यूड टू ईस्ट लॉन्गिट्यूड, तो तुम्हारा जो GMT होगा उसका डेट चेंज होने का चांस है। तो न्यूमेरिकल के टाइम तुमको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सो विद दिस जेंटलमैन वी मूव अहेड नाउ। सो लेट मी सी व्हाट एल्स वी हैव ओवर हियर। दिस इज ओवर। आई विल गो टू द बुक नाउ, and we have discussed standard time, zone time, time zones, and we have discussed international date line. This calculation I have explained to you now, 29 days or 31 days वाला। और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक में हमारे why stars rise, culminate and set 4 minutes earlier each day। ये आता है क्वेश्चन एग्जाम्स में। किसी ने एग्जाम्स के पेपर स्टडी किए? यस सर, आता है। आप लोगों ने, हाँ, एग्जाम के पेपर देखना जरूरी है, देन यू विल नो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ओके, इक्वेशन ऑफ टाइम तो हमारा हो गया। लेट्स डू दिस। व्हाई स्टार्स राइज, कल्मिनेट एंड सेट 4 मिनट अर्लियर ईच डे। किसी को कुछ आइडिया है इसके बारे में? कोई बता सकता है? Some of you have read the chapter in the book very well, I can make out. किसी को कुछ आइडिया है तो बताओ। नहीं है? ये डायग्राम क्लियर दिख रही है तुमको? नहीं सर। नहीं सर। डायग्राम मेरी बुक में बहुत लाइट है, लेकिन तुम्हारे पास बुक होगी। सर इसमें वही फंडा लग रहा है कि जो साइड्रियल फंडा ही देखा था। हाँ, फंडा तो वही है, ज्यादा फंडा नहीं है सेलेस्टियल नेविगेशन में। 2-3 चीजें अगर वो कॉन्सेप्ट एक बार समझ जाओ तो हर चीज वैसे ही है। सर जैसे सोलर डे होता है। यस। सो मैं बोर्ड में बना के थोड़ा समझा देता हूँ। ये थोड़ा सा पढ़ लो एक बार, फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन। Since the Earth completes a revolution of 360 degrees around the Sun in about 365.25 days, the average daily angular motion of the Earth around the Sun is approximately 1 degree, जो मैंने बोला था। So it is 59 minutes, 1 डिग्री पकड़ लो। To complete a solar day, therefore, the Earth has to rotate a little more. The solar day is 3 minutes 56 seconds longer than the sidereal day. साइडेरियल डे कितना था हमने बोला था? 23 hours 56 minutes 56 minutes 4 सेकंड है कि नहीं? तो 56 मिनट और 4 सेकंड को इसमें तुम जोड़ दो, 3 मिनट 56 सेकंड, तो कितना बनता है?
24 आवर्स 24 आवर हो जाता ना, 24 आवर्स 24 आवर हो जाता। तो साइडेरियल डे वही है कि एग्जैक्ट रोटेशन इज अ साइडेरियल डे। तो सन तक पहुंचने के लिए 4 मिनट और चाहिए, तो इसीलिए स्टार 4 मिनट पहले। सो आई विल जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन ऑन द बोर्ड नाउ। ये स्टेटमेंट को याद रखो जो ऊपर है, 24 आवर ऑफ साइडेरियल टाइम is equal to 23 hour 56 minute 4 second of mean solar time. हमारा 24 आवर कहाँ से मिला? मीन सन से मिला, और वो उसी को हमने रेफरेंस बना लिया टाइम मेजर करने का, और वहीं से हमको साइडेरियल डे का टाइम मिलता है 23 आवर 56 मिनट 4 सेकेंड ऑफ व्हाट? ऑफ द मीन सोलर टाइम। तुम्हारे पास घड़ी होगी तभी तो तुम 23 आवर 56 मिनट 4 सेकेंड गिन पाए या ना पाए। तो अगर कभी साइडेरियल टाइम सोलर टाइम कन्वर्ट करना हो तो ये इक्वेशन को याद रखना। So to complete a solar day, the Earth has to rotate 360 degrees plus that 1 minute, or 1 degree or 159 minute. Therefore, per day the Earth rotates that much excess of one rotation. तो पूरे साल में कितनी बार एक्स्ट्रा रोटेट करेगी? अगर डेली 4 मिनट एक्स्ट्रा रोटेट कर रही है अर्थ सोलर डे कंप्लीट करने के लिए, तो एक साल में 360 डिवाइड बाय 365 इंटू 365 एक कंप्लीट एक्स्ट्रा रोटेशन अर्थ करती है, अगर हम साइडेरियल डे के हिसाब से नापें तो। Therefore, in 1 year the Earth makes 366.25 rotations with respect to a fixed direction in space. But अगर सोलर डेज के हिसाब से देखें तो 365.25 सोलर डेज। Therefore, 365.25 solar days are equal to 366.25 sidereal days. Let me take you to the board. हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। Did you see the board now? Yes, sir. ठीक है ना अभी? Yes, sir. So सेम थ्योरी है, सेम फंडा है। ये एलिप्टिकल पाथ है अर्थ का, इधर सन है, इधर अर्थ, दो पोजीशन अर्थ का एक दिन में जो मूवमेंट हो गया, और दूर में एक स्टार है। So 360 डिग्री रोटेशन, वन साइडेरियल डे, मैंने पहले बता दिया था एक बार। साइडेरियल डे इज इक्वल टू 23 आवर 56 मिनट्स 4 सेकेंड। सोलर डे के लिए वी नीड टू गो लिटिल मोर। जो ऑब्जर्वर सन अगर ऑब्जर्वर के मेरिडियन पे आएगा 24 आवर घूमने के बाद
अर्थ आगे आ गई है, अर्थ ने 360 डिग्री रोटेट कर लिया, लेकिन सन अभी मेरिडियन पे नहीं आया है। सन मेरिडियन के आने के लिए लिटिल बिट मोर इट हैज टू टर्न। हाउ मच इज दैट लिटिल बिट? 1 डिग्री, और एग्जैक्ट अगर देखें तो 59 मिनट। 59 मिनट टर्न करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 3 मिनट 56 सेकेंड। इस 3 मिनट 56 सेकेंड को अगर हम जोड़ लें तो 24 आवर पूरा बन जाता है सोलर डे। नाउ आवर क्वेश्चन वाज stars rise and set 4 minutes earlier each day. How? तो वो इससे डायरेक्ट हमको जवाब मिल जा रहा है कि अगर सन मेरिडियन पे 4 मिनट बाद आ रहा है, लिसन केयरफुली, if the sun is coming on the observer's meridian 4 minutes late than the star, तो इसका मतलब स्टार का जो भी काम हो रहा है वो 4 मिनट पहले हो रहा है। यस और नो? अगर सन ऑब्जर्वर की मेरिडियन में इस समय देख लो, ऑब्जर्वर की मेरिडियन में सन भी है और स्टार भी है, लेकिन 24 घंटे के बाद घूमने के बाद ऑब्जर्वर मेरिडियन में स्टार आ गया लेकिन सन नहीं आया। तो स्टार 4 मिनट पहले हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं एक सिंपल तरीके से बोलूं तो यस और नो? आज अगर सन, मान लो ये कंजंक्शन में अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक ऑब्जर्वर है, यहां पर ऑब्जर्वर की मेरिडियन में सन है और उसी लाइन में एक दूर एक स्टार है। ये पॉइंट तो समझ आ गया ना? कंजंक्शन वाले तो हमने मून में भी किया, सब में किया, बहुत बार किया। यस और नो? यस सर। ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की मेरिडियन में सन आ गया और एक लाइन में स्टार भी है। अब 24 घंटे में जब अर्थ घूम गई, 360 डिग्री तो यहीं पर हुआ ना कंप्लीट? ये तो मानते हो तुम लोग कि नहीं? 360 डिग्री तो यहीं कंप्लीट हुआ ना? ऑब्जर्वर उधर ही है, तो ऑब्जर्वर के मेरिडियन में स्टार तो आ गया और सन आया 4 मिनट के बाद। इसका मतलब स्टार सन से 4 मिनट पहले आया कि नहीं मेरिडियन में? सिंपल क्वेश्चन है मेरा। स्टार सन से 4 मिनट पहले आया कि नहीं ऑब्जर्वर मेरिडियन में? यस और नो? यस सर। हम लोग को ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं समझ में आया? अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो अगर मेरिडियन में सन भी है, ऑब्जर्वर मेरिडियन में सन है और ऑब्जर्वर मेरिडियन में स्टार भी है, तो यही सिचुएशन बनाई है ना मैंने यहां पर। Z है, Z ऑब्जर्वर मेरिडियन, ये Z ऑब्जर्वर मेरिडियन, और यहां से अगर एक आदमी देखता है तो उसको सन और स्टार एक ही लाइन में दिख रहे हैं ऑब्जर्वर मेरिडियन में। ये समझ आ गया कि नहीं? यस सर। यस सर। तो अगर अर्थ 360 डिग्री घूम गई है तो ऑब्जर्वर यहां पर आ गया 360 डिग्री में और वो स्टार उसकी मेरिडियन में आ गया है, तो इतना तो मानते हो ना कि 360 डिग्री हो गया और स्टार ऑब्जर्वर की मेरिडियन में आ गया? यस और नो? यस सर। ये फिगर से तो इतना क्लियर दिख रहा है ना?
और सन ऑब्जर्वर मेरिडियन में कब आएगा? सन ऑब्जर्वर मेरिडियन में कब आएगा, कितनी देर के बाद? 4 मिनट बाद। 4 मिनट के बाद आएगा ना। तो मैं उस क्वेश्चन को थोड़े दूसरे ढंग से बोल रहा हूँ। अगर सन 4 मिनट के बाद आ रहा है तो इसका मतलब स्टार 4 मिनट पहले आ रहा है ना। यस सर। यस सर सही। इसका मतलब स्टार Yes. सन से 4 मिनट पहले है। तो अगर मेरिडियन के ऊपर स्टार 4 मिनट पहले आ रहा है तो राइजिंग भी 4 मिनट पहले करेगा ना, और सेटिंग भी 4 मिनट पहले करेगा, क्योंकि अर्थ तो फिक्स्ड स्पीड में घूम रही है। यस और नो? यस सर। Sir, but अगर स्टार meridian पे अगर स्टार आता सन से कैसे? जल्दी चल रहा है 4 मिनट, तो राइज भी जल्दी करेगा, तभी तो मेरिडियन में जल्दी पहुंचेगा, और तभी तो सेट भी जल्दी करेगा 4 मिनट पहले। यस और नो? क्या क्वेश्चन था? Somebody asked a question. क्वेश्चन पूछोगे नहीं तो मुझे समझ नहीं आएगा ना, फिर तुम्हें आया नहीं आया, कौन सा पॉइंट पे अटक रहे हो, कहाँ क्या नहीं समझ आ रहा। मतलब सर अगर सन को अगर तुम अपेरेंट डे, conjunction सोलर डे, मून का सब समझ गए तो फिर ये सेम चीज है। दोबारा बोलो, क्रॉस होगी हमारी बात। से अगेन, यू वर ट्राइंग टू से समथिंग। कौन बोल रहा था? कौन बोल रहा था, बोलो दोबारा। टाइम निकल रहा है, मेरे को प्रिसेशन भी करना है कंप्लीट, जल्दी बोलो। कहाँ हो, नहीं हो सब लोग, क्या भाग गए? कुछ बोल ही नहीं रहा कुछ। सर पता नहीं किसने क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली यहाँ नाम फ्लैश नहीं हुआ, तो काफी नहीं सर, लड़के हैं ना क्लास में। उसका आवाज ब्रेक हो रहा था सर। हाँ, तो अगर किसी और को समझ आया तो बोल दो क्या क्वेश्चन था। तो बाकी लोग भी तो नहीं बोल रहे हाँ या ना, समझे नहीं समझे, या तो बोल दो समझ गए तो आगे बढ़ जाऊं, या फिर समझ गए सर समझ गया सर। समझ गए हो ना। बुक से पढ़ लो, डायग्राम बना लो। So I will just repeat once again for the benefit of some of you who may not have understood. If on day 1 the sun and the star are in one line and on the observer's meridian, the next day when the earth has moved to the next position and the earth has rotated 360 degrees, the star is on the observer's meridian, but the sun will take another 4 minutes to reach the meridian. It means the star is moving 4 minutes earlier than the sun. तो अगर मेरिडियन पे 4 मिनट जल्दी आ रहा तो इसका मतलब राइज भी 4 मिनट जल्दी किया और सेट भी 4 मिनट जल्दी किया। सो दैट इज व्हाई वी से स्टार्स राइज एंड सेट 4 मिनट अर्लियर ईच डे। तो अगर कोई पर्टिकुलर स्टार तुम देख सकते हो किस समय कहाँ दिख रहा है, तो अगले दिन देखना 4 मिनट का फर्क होगा। जैसे मून का मैंने बताया था ना 50 मिनट का फर्क है, ऐसे स्टार के केस में 4 मिनट का फर्क है। So, okay, I will now move on to the next topic, precession of the equinoxes. Has anyone heard of this expression before, precession of the equinoxes? Exam में आया है, नहीं आया है, क्या है? इसका मैं एक वीडियो पहले दिखा दूंगा ताकि फिर तुमको समझ जल्दी आ जाए, बट थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ ताकि वीडियो भी तुमको समझ आ जाए। अदरवाइज वीडियो जो बना है इट इज एज्यूमिंग दैट यू नो फ्यू थिंग्स, सो थोड़ा सा हम अटक सकते हैं वहाँ पर। मैंने जायरोस्कोप का बात किया था
earlier, that the Earth behaves like a very good gyrosphere, because if you see, the axis of the Earth is pointing in the same direction in space, 223.5 inclined है, तो वो डायरेक्शन क्यों नहीं चेंज हो रहा है? Because the Earth is behaving like a very good gyrosphere. It is heavy, it is round, and it is rotating at a very great speed. अब मान लो ये साउथ पोल है और in the plane of the board there is a pin inserted. कोई एक बॉल में जैसे knitting needle डाल दी है हमने, और साउथ पोल है तो कैसे घूम रही है अर्थ? इस तरीके से। अगर ये साउथ पोल है तो इस तरीके से घूम रही है ना, वेस्ट टू ईस्ट। ऊपर से देखूंगा तो ये साउथ वाला कॉन्सेप्ट भी तुमको समझना चाहिए। इमेजिनेशन, कभी कभी प्रैक्टिकल नेविगेशन में साउथ पोल दिखाते हैं, आवर एंगल उल्टे बनते हैं, कैसे बनेगा नहीं बनेगा सर अपोजिट हो जाएगा ना, उतना समझना। हाँ, समझना जरूरी है ये भी। तो मान लो अगर एक इस तरीके से एक्सिस है, अर्थ ऐसे स्पिन कर रही है, तो जायरो के क्या प्रिंसिपल हैं? जायरोस्कोपिक इनर्शिया एंड प्रिसेशन। इनर्शिया की वजह से तो रिजिडिटी इन स्पेस हमको मिल गया, इट इज रिजिड, इट इज नॉट मूविंग। तुम देखते हो ना, जब साइकिल खड़ी होती है आदमी गिर जाता है, साइकिल चलती है, मोटरसाइकिल चलती है, आदमी क्यों नहीं गिरता? क्योंकि उसका जो चक्का है बहुत तेज घूम रहा है, उसका जो हब है इट इज पॉइंटिंग टू अ फिक्स डायरेक्शन इन स्पेस। तुम टेढ़ा हो के गिराना भी चाहो तो मोटरसाइकिल नहीं गिरती है, फोर्स लगा के टेढ़ा करना पड़ता है मोटरसाइकिल को। यस और नो? यस सर। लट्टू, हाँ, टॉप चलाया सबने? लट्टू जैसा। लट्टू चलाया? लट्टू? यस सर। नहीं सर। हाँ, लट्टू को क्या होता है? लट्टू जब घूम रहा होता है, आई डोंट नो तुम लोगों ने, ये लट्टू है और नीचे उसका पिन है। लट्टू जब घूम रहा है तो दो टाइप के तुमने ऑब्जर्व किए होंगे, कभी कभी झूमता भी है ना थोड़ा। यस सर। झूमता थोड़ा है, उसका जो नीडल Yes, है ये तो फिक्स्ड रहता है, ये तो हिलता नहीं है बिल्कुल। ऊपर का जो लट्टू है थोड़ा झूमता है ऐसे। अगर तुम लट्टू को थोड़ा टच करो, उसके टॉप को अगर एक फोर्स लगाओ तो क्या होता है? क्या वो गिर जाता है? नहीं। अगर स्लो होगा या रुकने वाला होगा तो गिरेगा, अगर स्पीड में घूम रहा है तो नहीं गिरता ना, क्योंकि वो भी एक जायरोस्कोप है। रिजिडिटी इन स्पेस, इट इज मेंटेनिंग अ फिक्स्ड डायरेक्शन इन स्पेस। जब तुम उसको पुश करते हो तो नहीं गिरता है, लेकिन पुश करते हो तो थोड़ा उसमें मूवमेंट आता है। क्या मूवमेंट आता है? वो ऊपर का जो हेड है वो गोल गोल घूमना शुरू कर देता है। घूमता है कि नहीं थोड़ा सा? हाँ सर। अगर ज्यादा लट्टू जिसने चलाया वो समझ जाएगा। नीचे का जो कांटा है, पिन एक जगह रहता है, ऊपर का मुंडी घूमता रहता है उसका। यस, क्योंकि नीचे तो फिक्स उसको सपोर्ट मिला हुआ है, लेकिन अर्थ का तो नीचे कोई सपोर्ट भी नहीं है। अर्थ तो पूरा फ्री है। अर्थ इज अ वेरी गुड जायरोस्कोप बिकॉज इट हैज गॉट फ्रीडम टू मूव इन ऑल द 3 डायरेक्शंस। एक तो वो रोटेट कर रही है, स्पिन कर रही है, एक डायरेक्शन हो गया। दूसरा, एजीमथ में मैं इसको हिला सकता हूँ, इट हैज गॉट फ्रीडम, कुछ रोक के नहीं रखा है। और तीसरा, ऑल्टीट्यूड में मैं इसको उठा सकता हूँ। तो एक तो वो घूम रही है, एक डायरेक्शन हो गया, फ्रीडम इन एजीमथ है एंड फ्रीडम इन ऑल्टीट्यूड है। तीनों डायरेक्शन में फ्री है ना अर्थ घूमने के लिए, स्पेस में तो सस्पेंडेड है। यस और नो? सो इट इज बिहेविंग लाइक अ वेरी गुड जायरोस्कोप। नाउ द अर्थ इज फ्लैट एट द पोल्स। इक्वेटर में 26 माइल ज्यादा डायमीटर है। इक्वेटर में वेट ज्यादा है, ये हमने पहली क्लास में डिस्कस किया हुआ है।
इक्वेटर में थोड़ा अर्थ का वेट ज्यादा है। तो अब क्या होता है, ध्यान से सुनो। अगर ये जायरोस्कोप घूम रहा है इस डायरेक्शन में और मैं इस पिन को नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश करूं तो क्या होगा इसको? If I apply a force in this direction, सर अगर वर्टिकल फोर्स लगाएंगे तो हॉरिजॉन्टल में उसका मूवमेंट होएगा। वर्टिकल फोर्स होगा तो हॉरिजॉन्टल में मूवमेंट होएगा। 90 डिग्री अवे मूव करता है कि नहीं? किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ थोड़ा पढ़ लेना जायरोस्कोप के बारे में। प्रिसेशन अगर अच्छे से समझना है तो थोड़ा जायरोस्कोप को दोबारा पढ़ लो। 90 डिग्री अवे। अब एग्जांपल है ये, तो अगर ये रोटेशन है, ये डायरेक्शन, ये टॉर्क में देता हूं इसको या फोर्स लगाता हूं, तो प्रिसेशन इस डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो अगर एक पिन है, यहां देख लो, तो पिन इस तरीके से घूमेगा। तो बोलने का क्या मतलब है, अभी वीडियो तुम देखोगे तो समझोगे कि बिकॉज द इक्वेटर इज हैवी, the force of attraction of the sun and the moon is more on the equatorial region, तो it is applying a force। ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो इस तरीके से थोड़ा सा प्रेशर डालता है, एक टॉर्क देता है अर्थ को, तो एक्सिस जो है वो ऐसे घूमती बाहर आती है, लेकिन बाहर आने के बजाय वो एक रोटेशन चालू कर देती है, क्योंकि कंटिन्यूस फोर्स लग रहा है। तो जो एक्सिस है वो 90 डिग्री अवे मूव कर जाती है, कंटिन्यूस फोर्स आता है, कंटिन्यूस मूव करती है। अगर इसको मैं एक और तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो ये इक्विनॉक्शियल है, ये इक्विनॉक्शियल है, ये प्लेन ऑफ द इक्लिप्टिक है, ये प्लेन ऑफ द इक्लिप्टिक है, इधर सेलेस्ट इक्लिप्टिक पोल है, ई पी इक्लिप्टिक पोल, और इधर है इक्विनॉक्शियल पोल, इक्विनॉक्शियल पोल, और यही एक्सिस है अर्थ का, यही एक्सिस है अर्थ का। तो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स जो सन और मून का है, इक्वेटर में लगता है तो वो उसको घुमाता है, और दोनों इक्विनॉक्शियल और इक्लिप्ट को मिलाने की कोशिश करते हैं, ये इधर आता है। लेकिन क्या होता है, the axis is moving out and it makes a circle around this one, इसके आसपास एक सर्कल बनाता है। अब इसके आसपास सर्कल बनाता है, so if the equinoctial is trying to match with the ecliptic, what is actually happening? What is actually happening? थोड़ा मैग्नीफाइड कर देता हूं। ये जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ आइरिस है, ये जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ आइरिस है, बिकॉज ये सर्कल घूम रहा है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ आइरिस इक्विनॉक्शियल इसके साथ मिलने की कोशिश कर रहा है, प्रिसेशन से अर्थ घूम जाती है, तो जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ आइरिस है हर साल थोड़ा सा वेस्ट आ जाता है, हर साल आ जाता है। हर साल कितना आता है? 50.2 सेकेंड्स, 50.2 सेकेंड हर साल मूव कर जाता है। अब हम ये सब क्यों डिस्कस करें, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? यहां पर क्या होता है, विच इज दिस पॉइंट फर्स्ट ऑफ आइरिस? एक साल में सीजन के हिसाब से मैं पूछूं तो व्हाट हैपेंस?
इक्विनॉक्स इक्विनॉक्स है, सन का डेक्लिनेशन चेंज हो रहा है फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ। सीजन इसी से बनते हैं ना हमारे, Yes, sir. सीजन इसी से बनते हैं। तो जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर वही शिफ्ट हो रहा है तो कुछ सालों बाद तो मेरे सीजन भी चेंज हो जाएंगे। दिसंबर में समर आ जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो ये करेक्शन मेरे को करना जरूरी है। दूसरा क्या इफेक्ट होता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ आयरिस से शिफ्ट हो जाने से, और हमारे कैलकुलेशन में क्या फर्क पड़ रहा है? कैन एनीवन थिंक? एल्मेनेक में क्या चेंजेस आ रहे होंगे? सर जितने भी हम आर एंगल लेते हैं इस फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज को रेफरेंस लेके सर, वो सब यस, वेरी गुड थिंकिंग। साइडियल आवर एंगल चेंज हो रहे हैं हमारे हर साल। तुम एल्मेनेक उठा के 1 जनवरी और 30 दिसंबर का देखो, 1 मिनट के आसपास SHA कम हो रहा होगा, ज्यादा हो रहा होगा? स्टार तो फिक्स्ड पॉइंट इन स्पेस है ना, तो अगर फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज वेस्ट हो गया तो SHA कम हो जाएगा। यस और नो? यस सर, कम हो गया। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज से SHA नाप रहा हूँ कोई चीज का यहाँ से, और फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज इधर अगर हो गया तो SHA कम हो गया ना इतना। यस और नो? Yes, sir. इस टोटल सर्कल को कितना टाइम लगता है? 25,800 साल, क्योंकि 50 सेकेंड 50.2 सेकेंड एक साल में चलता है, तो 360 डिग्री करने के लिए कितना होगा? हिसाब लगा लो। 1 मिनट हो गया ना, तो 60 साल में 1 डिग्री होगा। तो इस तरीके से करके देखोगे 25,800 साल में ये पूरा एक बार होता है। बट even though if it is insignificant, because it is affecting our season, it is making a difference to us. So एक बार और हम लोग देखेंगे साइडेरियल ईयर क्या है, साइडेरियल ईयर क्या है, ट्रॉपिकल ईयर क्या है, ट्रॉपिकल ईयर क्या है। ट्रॉपिकल ईयर हम फॉलो करते हैं क्योंकि हमें सीजन फॉलो करना है। ट्रॉपिकल ईयर हम फॉलो करते हैं क्योंकि हमें सीजन फॉलो करना है। लीप ईयर क्यों बना है, किसी को मालूम है? आई विल क्विकली ट्राई टू फिनिश दिस। लीप ईयर क्यों बना है? लीप ईयर क्यों बना है? अर्थ कितना टाइम लेती है एक बार रोटेट करने में? 365.25 डेज। Yes, sir. लेकिन हमारे कैलेंडर में कितने दिन हैं? 365. 0.25 को हम छोड़ देते हैं ना, वो ऐड हो जाते हैं 4 साल में, 4 साल के बाद 366 डेज हो जाता है। यस और नो? यस सर। तो was the year 2000 leap year? Yes or no? Yes or no? Huh? Yes, sir. यस 2000 is a leap year? Yes. 2004 भी लीप ईयर होगा। Yes, sir. 2100 लीप ईयर है कि नहीं है? यस सर है। क्यों है यस सर? जल्दी जल्दी बोलो, टाइम खत्म हो रहा है। That is divisible by 4 after 2000. 2100 is not a leap year. सेंचुरी का जो साल है
वो 400 से डिवाइड होना चाहिए। 400 से डिवाइड नहीं अगर हो रहा है तो लीप ईयर नहीं है। 400 से डिवाइड क्यों होगा? 400 से डिवाइड क्यों होगा? वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि ये जो डिफरेंसेस हैं 50 सेकंड के साइडेरियल ईयर और ट्रॉपिकल ईयर में, जब कैलेंडर बना था तो जूलियस सीजर ने बनाया था तो जूलियन कैलेंडर होता था। बाद में पोप ग्रेगरी आ गया, उसने ग्रेगोरियन कैलेंडर बना दिया, जिसको हम इंग्लिश कैलेंडर बोलते हैं। दैट इज बेसिकली ग्रेगोरियन कैलेंडर। अभी वीडियो में भी थोड़ा सा तुमको हिंट मिलेगा उसका। क्योंकि ये जो वेरिएशंस है अर्थ के रेवोल्यूशन और रोटेशन और प्रिसेशन ऑफ द इक्विनॉक्स, इसको बैलेंस करने के लिए, वरना 10,000 12,000 साल में सीजन चेंज हो जाएंगे। जो जून में इक्विनॉक्स हो रहा है, गर्मी हो रही है, वो नहीं होगा। जो विंटर में सर्दी हो रही है, वो नहीं होगा। तो उसको क्लोजेस्ट टू क्लोजेस्ट लाने के लिए 3 सेंचुरी के साल में हम लीप ईयर नहीं इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर हम इस साल में इंट्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि इसके हिसाब से ट्रॉपिकल ईयर इज 20 मिनट्स शॉर्टर देन द साइडेरियल ईयर। अगर मैं बोल रहा हूं कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ आयरिस मेरा यहां शिफ्ट कर गया है, अगर फर्स्ट पॉइंट ऑफ आयरिस मेरा यहां शिफ्ट कर गया है, तो इक्विनॉक्शियल का इंटरसेक्शन और इसका यहां पर आ गया ना, फिर ये इधर आ गया ना, क्योंकि थोड़ा सा टिल्ट हुआ है। अगर इधर आ गया है तो हमने बोला साइडेरियल आवर एंगल कम हो गए। तो फ्रेंड्स, अगर साइडेरियल आवर एंगल कम हो गया है तो मेरा साल भी तो छोटा पड़ गया। जो मेरा मीन सन चल रहा है इक्विनॉक्शियल में, मीन सन इक्विनॉक्शियल में चल रहा है, और जो मेरा ट्रू सन चल रहा है इक्लिप्टिक में, ये दोनों भी तो जल्दी खत्म हो जाएंगे। जब साल कंप्लीट होने का पॉइंट, व्हेन बोथ द पॉइंट्स आर सपोज्ड टू मीट, अगर वो ही पॉइंट पहले शिफ्ट हो गया, ईस्ट बन गया, सो द ईयर हैज आल्सो बिकम शॉर्टर। एंड आई एग्री, दिस इज माय ईयर। जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है वो मेरा साल का काउंट है, क्योंकि सीजन वहां से स्टार्ट होता है, सन का स्टार्स का डिक्लिनेशन वहां से मेजर होता है। सो द ट्रॉपिकल ईयर इज 20 मिनट शॉर्टर। अब अगर ट्रॉपिकल ईयर 20 मिनट शॉर्ट है एक साल में, तो ऐसे करते करते जब हम लोग दिन साल महीनों में पहुंचते हैं तो ये एडजस्टमेंट जरूरी है। अब एक बार वीडियो देख लो, उसके बाद भी अगर कुछ नहीं समझ आएगा तो वी विल मूव अहेड। बेसिक आइडिया तुमको मैंने दे दिया है, विच आई थिंक मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। इसके बाद बुक से पढ़ के तुमको अपने हाथ से थोड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा, then only you will be able to understand this. This is a slightly difficult and complicated topic to understand. So, but why we are discussing is important, because it is affecting our seasons. So you read this topic. Now it is time for your break now. If you have any doubt, tomorrow morning I have 2 classes. I will be discussing sextant and its errors and altitudes. But if you want, I will spend 5 minutes on this topic again. But it is important to understand this topic. You must read this and come thoroughly. Figure 8.17. So if you have understood the gyroscope, how the precession works, in which direction if you apply a torque and which direction it moves, you will understand that the axis of the earth is also, even if it is pointing in a fixed direction in space due to gyroscopic inertia, and we are saying earth is a very good gyrosphere, so it is also subject to precession. Precession because equator is more heavy and the sun's and moon's gravity is affecting that one and providing a slight torque. So if it is providing a slight torque,
the axis of the Earth is moving away in a horizontal 90-degree direction, but at the same time it is getting corrected and moving and corrected and moving. So it makes a circle which takes 25,800 years to complete. But this circle is also not a perfect circle because everything is elliptical, apogee, perigee, aphelion, perihelion. The moon has also got some declination and cycle. Sometimes the moon is pulling more, sometimes the moon is pulling less. So the circle is also slightly wavy. We call it nutation. Circle is also slightly wavy. So the SHA of the stars, declination, they will not be changing at any fixed value. थोड़ा थोड़ा up down चलता रहता है because everything is depending upon this. So with this I close my session today. And उसके बाद years are also explained. If you are more interested to read, you can read the years, tropical years and the leap year. So over here, if you see, I will read the last line. Thus in 400 years, we now have 97 leap years and 303 years of 365 days. This makes the average length of the civil year equal to 365.2425 mean solar days, which is very nearly equal to the length of the tropical year, which is 365.25. So thank you, gentlemen, for your patience. So we close the topics for today. Is it okay now?